जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप सत्संग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं उत्तराखंड तो बोल रही हाँ, अपना शुकराना सत्संग ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਅਬਰੋਡ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਅਬਰੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੈਲਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੋਲਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੱਥਰ ਪਿੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਏ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢਣਗੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮਾਈ ਫੀਟ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਟਮਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਨਸੈਡ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਡਨੈਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਔਰ ਡਿਸਹਾਰਮੋਨੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਝੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਬੀ ਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗੇਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नैनीताल से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो सत्संग जी, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी जैसे मुझसे सत्संग शेयर कराएंगे, मैं वैसा ही सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा मेरे बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे मेरे घर 30 सत्संग करवा दिए हैं। मुझे शिवरात्रि से 3-4 दिन पहले से ही गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बच्ची मैं तेरे घर शिवरात्रि में आ रहा हूँ, सत्संग करा। और मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरे बच्चे कमाएंगे। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बच्ची तो अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है, अभी ही पढ़ने गई है। और गुरुपा को शायद पता था कि मेरी बच्ची को कहीं से इनकम होएगा। सत्संग जी यकीन नहीं मानोगे, उसके कॉलेज में फेस्ट था 7 और 8 फरवरी को, और गुरुपा ये भी मैसेज कर रहे थे कि तुझे मैं 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। और उनकी महिमा देखिए, ये तो वही जानते हैं। 7 फरवरी शिवरात्रि से एक दिन पहले 7 फरवरी को मेरी बेटी ने स्टॉल लगाया था अपने कॉलेज में। उसने जो आर्टिकल बेचा और उसको जो रुपए हाथ में आए, फिगर था 7,000 रुपये। फिर हमने नई स्कूटी ली थी जिसका रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी को था और उसका भी नंबर 7 था। तो ये तो हम
इसको महिमा ही कहेंगे गुरु जी की, जो उन्होंने मुझे कहा था कि 7 नंबर से मैं तुझे ब्लेस करूँगा, और 7 नंबर तो गुरु पाका ही है। यह तो गुरु जी की ही ब्लेसिंग ही है। फिर गुरु पा ने के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे शिवरात्रि में सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। मैं उस दिन मंदिर गई थी और बहुत भीड़ थी। मैं आखिरी तक मंदिर में बैठी थी कि लास्ट में मैं दर्शन करके ही जाऊंगी। और जब मंदिर खाली हो गया था तब मैं मंदिर के सामने बैठी थी और मेरी नज़र शंकर भगवान जी की मूर्ति पर पड़ी और मैं इतनी हैरान हो गई कि शंकर भगवान ने सफ़ेद चोला ही पहना हुआ था। तो मेरे साथ बहुत से मैजिक होते रहते हैं और सच में गुरुपा दर्शन भी देते रहते हैं। और शिवरात्रि में हमने फिर सत्संग कराया और कड़ा प्रसाद बनाया था, जिसमें कि गणेश जी की प्रतिमा भी बन गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बहुत से और सत्संग हैं जो मैं आगे शेयर करूंगी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का पल पल शुक्राना है, गुरु जी का लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। हम मनुष्य थैंक यू और शुक्राना के अलावा और क्या कर सकते हैं। हर एक चीज़ गुरु जी का ही शुक्राना है। मुझे 5 माह से मैसेज आ रहा था कि तू अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो मैं तेरे घर आऊँगा। इससे पहले मैसेज आता था कि हम छेती आ जा बड़े मंदिर, अपनी ब्लेसिंग ले जा। 6-7 को मैंने अरदास की, मुझे मैसेज मिला कि सब लोग मुझसे मिलने। मैंने अरदास की कि गुरु जी अब मैं तो नहीं मंदिर आ पाती क्योंकि मेरे अंकल अभी नहीं मानते, इसलिए मैं अकेले नहीं आ सकती। या तो आप मुझे किसी के साथ कोई बनाओ कि मैं आ सकूं उनके साथ, या फिर आप देखो आपने कैसे ले जाना है। तो फिर 6 और 7 को मुझे मैसेज आता है कि सब लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन मैं तेरे घर आऊँगा। फिर मैं तेरे घर आऊँगी। मैंने कहा पता नहीं गुरु जी, मैं तेरे घर आऊँगा। फिर शिवरात्रि वाले दिन गुरु जी की दोपहर सुबह जैसे पूजा वगैरह की, हमारे वो हैं एक बाबा झूले वाले, हम वहाँ जाते हैं। तो हम वहाँ गए। मैंने कहा गुरु जी तो कहीं दिखे ही नहीं। वहाँ पर रास्ते में गुरु जी थे। मैंने गुरु जी को बोला था कि चलो साथ में चलेंगे। गुरु जी ने अपनी जो बटरफ्लाई के रूप में मुझे अपने दर्शन दिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ साथ चले, हमारे साथ साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर शाम, शिवरात्रि वाले दिन शाम हो गई। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी अभी तक तो आप आए ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, आप आए नहीं। इतने ही मैं जोत जला के मैं बैठती हूँ बाहर, माथा वगैरह टेक के ऐसे ही थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह के उठे होते हैं, थक जाते हैं। फिर थोड़ा सा लेट जाती हूँ। 7-7:30 बजे के करीब मैं लेटती हूँ। तो इतने में मेरी बेटी कहती है मम्मी मच्छर। मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो मच्छर नहीं है, ये तो बटरफ्लाई है। गुरु जी का बेबी बटरफ्लाई भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, ब्राउन से कलर में। गुरु जी मेरे घर आए, शुक्राना गुरु जी। फिर कभी मेरी बेटी के पास जाए, कभी किचन में, कभी इधर। मेरी बेटी को ब्लेस, मेरी बेटी के सिर के ऊपर से, मेरे ऊपर से
हम दोनों ही थे अंदर उस वक्त। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने ऐसे मुझे अपने दर्शन दिए शिवरात्रि वाले दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी के सिर के ऊपर से गुरु जी घूम कर उसे ब्लेस कर गए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा रहती हूँ, चिंता लगी रहती है उसकी। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया और बेटी के मुंह पर बैठकर उसे, फिर बटरफ्लाई बेटी के मुंह पर बैठकर उसको ब्लेस करके गई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरा एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरा 15 मार्च का है, जिसमें गुरु जी ने मुझे जल वर्षा सपने में दिखाई। हुआ ये था कि मैं शाम को सत्संग में गई और बहुत अच्छा था। मुझे डर लग रहा था कि अंकल लड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे नहीं मानते, पर मुझे यकीन है ऐसा एक दिन आएगा जब खुद बोलेंगे कि जय गुरु जी। रात को सपने में मैंने देखा कि एक सत्संग में गई हूँ, वहाँ पर 7 स्वरूप रखे हैं, 3 एक साइड, 4 एक साइड। फिर मैंने एक स्वरूप जो वाइट कलर और ब्लैक कलर के चोले में था, उस स्वरूप को उठाकर मैंने एक और जगह पर रख दिया। एक अंकल जो थे वो बोलने लग गए, लेकिन सब कहने लगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर यहीं रहने दो। फिर वो वहीं रखा जहाँ मैंने रखा था। फिर उस अंकल को पता नहीं ऐसा लगा कि जल वर्षा होने लगी है, जल वर्षा होने वाली है। फिर उन्होंने एक लोटा जल पता नहीं कहाँ डाला या चढ़ाया और उसी वक्त जल वर्षा होने लगी। और संगत जी, इसमें एक बात और अलग थी कि इस सत्संग में मेरे साथ अंकल भी थे और वो देखकर ये सब कि जल कैसे आ सकता है हैरान हो गए। मैंने उस जल वर्षा में नहाई, उसको पिया, बहुत सारा पीती गई, उसके नीचे ही खड़ी हो गई मानो बरसात हो रही हो। और अंकल आते हैं एक बड़ा सा कपड़ा लेकर, जैसे एक चौखट होती है उसके ऊपर 3-4 ईंट की जैसे लाइनें सी होती हैं, उस टाइप से था। उसके ऊपर छत नहीं थी, ऐसे ही चौखट, फिर उसके ऊपर 3-4 रद्दे ईंट के बनाए हुए थे। उसके ऊपर कपड़ा डाल के ऐसे वो करते हैं, वो छोटी सी दीवार होती है, उसके ऊपर कपड़ा डाल के दोनों हाथों से एक साइड उधर से एक साइड इधर से उसको खींचने लग जाते हैं। वो सोच में पड़े थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब गुरु जी की कृपा है। ये जय गुरु जी। फिर मेरी नींद खुल जाती है। शायद ये सुबह 3 और 4 बजे का सपना था, जिससे गुरु जी ने दर्शन दिए, मुझे दिखाया कि वो भी तेरे साथ होगा, ऐसा तेरे साथ होगा एक दिन सत्संग में। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक और सत्संग में छोटा सा बहुत ही प्यारा कल का है, 28 मार्च का। एक सुबह में अमृत वेला करके बैठती हूँ, चाय चूर पी के, फिर और काम करके, फिर दोबारा से मैं थोड़ी देर पाठ करती हूँ। अमृत वेला मैं बिना नहाए ही करती हूँ। अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, पर मैं हाँ उठ के मुँह धो के ऐसे ही बैठ जाती हूँ अमृत वेला करने जब भी गुरु जी जगाते हैं। सो थैंक यू गुरु जी। अमृत वेला थोड़े दिन तो हो गए लगातार होते हुए, पर पहले मैं बीच में करती थी तो 2 दिन होता था, तीसरे दिन उठा नहीं जाता था। फिर 3 दिन, कभी 3 दिन हुआ तो चौथे दिन ना उठा गया। लेकिन अब
थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है। गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी मुझे अमृत वेला दो, बख्शो। अगर मुझसे कोई संगत जी कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला, फिर मैं अपने सत्संग में आती हूँ, अमृत वेला करके बैठी, चाय चुई पी, फिर दोबारा नहा के फिर मैंने दोबारा धूप बत्ती की और मैं शिव पुराण का एक अध्याय कभी करती हूँ कभी नहीं करती, करके फिर मैं बैठ जाती हूँ और फिर मैं ऐसे बच्चों को उठाती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि एक अब इस बार बेबी बटरफ्लाई नहीं, बड़ी बटरफ्लाई थी, उससे बड़ी। जैसे बच्चा बढ़ता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, ऐसे ही मेरे घर में भी 3 बार ही बटरफ्लाई हैं आए हैं। शुक्राना गुरु जी, अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना, मेरे घर में आने का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। मेरी जिंदगी मैंने, हाँ, कमी नहीं है किसी चीज की, पर खुशी भी कुछ नहीं कह सकती। जैसे एक चीज की कमी होती है ना, पैसों से प्यार नहीं या खुशी नहीं खरीदी जा सकती, कुछ इस तरह से। 3 बार मैं इस बात का मैं फिर आगे फिर कभी और 3 सत्संग शेयर करूंगी। अभी गुरु जी का हुक्म नहीं हो रहा। तो फिर मैं बटरफ्लाई आई एकदम से, पता ही नहीं कहाँ से कैसे आई। मेरे दरवाजे तो सारे बंद थे, पर फिर मेरी सफाई काम वाली आंटी आती हैं, वो कहती हैं कि ये दरवाजे खोल दो, वो दरवाज़ा खुला रखा करो क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी हो जाती है, सारी रात का बंद तो हुम्मस हो जाती है, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं। पता नहीं उस टाइम आते हैं, लेकिन जब वो आंटी आती है ना, मेरे मन में भाव आता है कहीं गुरुजी तो नहीं आ गया आज, क्योंकि कई दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं आऊँगा। लेकिन मैंने कहा ये तो आंटी तो रोज ही आते हैं। फिर मेरे मन ऐसे ही फिर मैं आंटी वो बाहर का काम करने लग गए। फिर बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई आई, वो भी ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में। मैंने पिक भी ली उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन भी मैंने पिक ली, मैं पिक सेंड करूँगी। तो फिर मैंने फटाफट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके कड़ा प्रसाद बनाया और उस कड़ा प्रसाद में मेरे गणेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक साइड से देखो तो गणेश जी लगते थे, दूसरी तरफ जैसे कटोरी को घुमा के देखो तो कृष्ण भगवान। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे गणेश जी और कृष्ण रूप में दर्शन दिए। जो ये मैसेज मुझे 5-6 दिन से पहले आ रहा था कि मैं तुझे कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा, गणेश रूप के साथ तेरे घर आऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, सरबत्ता भला गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। सत्संग तो और भी बहुत से हैं, पर अभी सिर्फ इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।